वजीर पोनुम प्रभाकर ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन पर तमाम जमातों में इत्तेफाक राय मौजूद है। उन्होंने कहा कि हर सियासी जमात समाजी इंसाफ के फैसले की पाबंद है। पोनुम प्रभाकर ने जोर दिया कि अदालत के सामने सभी पार्टियां अपने अपने ख्यालात पेश करें। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के मामले पर 50% की हद को लेकर कुछ लोग बगैर समझ बूझ के बात कर रहे हैं। वजीर ने वाज़ेह किया कि बीसी बरादरियों के साथ इंसाफ हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि अवामी हिमायत से ये मसला मुस्बत तौर पर हल होगा। अपोजिशन जमातों ने भी इस मामले पर अपने मौक़िफ़ को मजबूती से रखना चाहिए। पोनुम ने कहा कि रिजर्वेशन का मकसद पसमानदा तबकात को मसावी मौक़े फराहम करना है। उन्होंने अपील की कि तमाम फरीक़ैन अवामी मुफाद को मुक़द्दिम रखें। ये मामला रियासती सियासत में अहमियत इख्तियार कर गया है। कांग्रेस तो पाटुगा टीआरएस तो पाटुगा बीजेपी सीपीఐ सीपीएम ఎంఐఎం లోక్సత్తా జనసత్తా జనసేన అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మేము రాజకీయ పార్టీ అనుకునే ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాసనసభలో ఉన్నటువంటి పార్టీలతో సహా బయట కూడా అందరూ ఈ సామాజిక న్యాయ నిర్ణయానికి మా పార్టీ కట్టుబడి ఉంది। న్యాయస్థానం దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి। తప్పకుండా 42% రిజర్వేషన్లను కొనసాగించే విధమైనటువంటి అభ్యర్థనను గౌరవ చీఫ్ జస్టిస్ కు బెంచ్ కు ఇవ్వమని అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। తప్పకుండా మీరందరూ స్పందించి ప్రత్యక్షంగా పర్సనల్ కూడా మేము ఆయా పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లతోటి అదేవిధంగా పార్టీ అధ్యక్షులతో కూడా నేను గారిని కొండ సురేఖ గారు కానీ లేదా వాకిటి శ్రీ గారితో పాటుగా బలగిన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ పార్టీ పెద్దలు అందరం కూడా పోయి కలుస్తాం। ఇలా రాజకీయమైనటువంటి బేషిజాలకు సంబంధించిన అంశం కాదు। 29 రాష్ట్రాల్లో దేశంలో అనేకమైన అంశాలున్నాయి। గిరిజన ప్రాంతాల్లో చాలా రాష్ట్రాల్లో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి 90-80% రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది। ఇక్కడ 50% క్యాప్ గురించి కూడా కొంతమంది అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। 50% క్యాప్ అనేది రాజ్యాంగంలో మార్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి అంశము। 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ 50% క్యాప్ ఎత్తేయబడింది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా జరుగుతాయి। కానీ ఇలా ఒకటే ఒక మాట అందరికీ బతుకమ్మ పండుగ జరుగుతూ ఉంది, ఇలా దసరా పండుగ వస్తూ ఉంది। తెలంగాణలోని కానీ దేశవ్యాప్తంగా బలిగిన వర్గాలు ఓహో తెలంగాణలో ఇలా ఒక సామాజిక న్యాయానికి మార్గం పడ్డది। అక్కడ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు దీనికి సంబంధించి నాయకత్వం వహిస్తూ ఉన్నారు। వాళ్ళ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు జితనే ఆబాదీ ఉతనే హిస్సేదారి అనేటువంటి అంశం ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది అనేటువంటి ఒక మాట చర్చ జరుగుతున్న సందర్భంలో నోటికాడి ముద్దను ఎగ్గొట్టే ప్రయత్నం వద్దు। बीजेपी रहनुमा गोवाला बालराजू ने ऐलान किया कि वो श्री सीला में सनमे गरजना अवामी जलसा मुनक्किद करना चाहते हैं। ये ऐलान उन्होंने इचम्पेट में मुनक्किदा जनगरजना जलसे के बाद किया। बालराजू ने कहा कि इचम्पेट में उन्होंने अवाम के दिलों में मुस्तकिल मकाम हासिल किया है। उन्होंने पार्टी के सीनियर क़यादत से इजाज़त तलब की है ताकि श्री सीला में ये जलसा कामयाबी से मुनक्किद हो सके। बालराजू ने अवाम से अपील की कि वो जलसे में भरपूर शिरकत करें। उन्होंने कहा कि ये जलसे अवामी मसाइल की निशानदेही और पार्टी की पॉलिसियों को आगाह करने के लिए अहम है। बीजेपी कारकुनान भी जलसे की तैयारी में मसरूफ हैं। बालराजू ने अवाम से उम्मीद जाहिर की कि जलसा शानदार और पुरअमन होगा। उन्होंने कहा कि अवाम की हिमायत से पार्टी की पोजीशन मजीद मजबूत होगी। ये जलसा मकामी सियासत में अहम मोड़ साबित हो सकता है। మాత్రమే వచ్చి ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పడతా ఉన్నాం। తప్పకుండా మా అధిష్టానంతో చర్చిస్తాం। నీ జనగర్జనకు ధీటుగా మా పార్టీతో చర్చించి మీ దుర్మార్గాలు, మీ ఆగడాలు, మీ అవినీతి, మీ పనికిరానితనం విషయంలో సిరిసిల్లలో సింహగర్జన ఏర్పాటు చేస్తాం। దమ్ముందా కేటీఆర్? స్పందిస్తావా నా సవాలుకు? అక్కడ వచ్చి ఏదో నెగ్లెక్టెడ్గా మాట్లాడిపోతా ఉన్నావు। ఎవరో కాదు, ఉద్యమాన్ని నిర్మించినటువంటి బిడ్డడు గువ్వల బాలరాజ్ అంటే ఆ గులాబీ జెండాను మోసుకు వెళ్ళినటువంటి సైనికుడు గువ్వల బాలరాజ్ స్థానాన్ని ఇంకోరితో పూరుస్తారంట। గువ్వల బాలరాజ్ అచ్చంపేట ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిరమైనటువంటి స్థానాన్ని సంపాదించినటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు। तेलंगाना के साबिक वजीर और रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत एक सर्कस और रियल स्टेट कारोबार की तरह चल रही है।
जगदीश रेड्डी के मुताबिक ऐसी जगहों पर सड़कें बिछाई जा रही हैं और मेट्रो ले जाई जा रही है जहां ना घर हैं और ना ही आबादी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करके सिर्फ रियल एस्टेट मुफादात को फ़रोग़ दे रही है। साबिक वज़ीर ने कहा कि ये इक़दामात अवामी पैसे का ज़िया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो शहरी सहूलतों और देही तरक्की पर तवज्जो दे। उनका दावा है कि रेवंत रेड्डी की पॉलिसियां आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही। जगदीश रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो हुकूमत के फैसलों पर सवाल उठाएं। उन्होंने कहा कि तरक्की का मतलब अवामी फलाह होना चाहिए, न कि सिर्फ रियल एस्टेट को बढ़ावा देना। ये बयान रियासत में सियासी माहौल को मज़ीद गर्मा देने वाला साबित हुआ है। ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ దందా నడుస్తుంది. ఇంకొక వైపు ఈ ప్రభుత్వం ఒక సర్కస్ లాగా నడుస్తుంది. కేవలం ఒక కుటుంబ రియల్ ఎస్టేట్ దందా కొరకు ఎవడైనా రోడ్లు వేస్తే, రైలు మార్గాలు వేస్తే దేని కొరకు వేస్తారు, ఎక్కడ వేస్తారు, ఎట్లా వేస్తారు? ఇండ్లు లేని కాడ రోడ్లు వేసేటోని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న చూసినామా మనం? జనవాసాలు లేని కాడ రోడ్లు వేయడం అనేది ఎవడన్నా బుర్రమునోడు చేసే పనేనా? ఇప్పటివరకు మనందరికి జ్ఞాపకం వచ్చిన కానించి, జ్ఞాపకాలు ప్రారంభమైన కానించి ఏ రోడ్లు ఉండే, ఎట్లయినా ఇవ్వాలా? మొదలు ఒక పంచాయతీరాజ్ రోడ్డు ఉండే, కొద్దిమంది బండ్లు ఎడ్లు చిన్న చిన్న నడిచిన్నాడు. ఆ తర్వాత అవసరాలను బట్టి, అవసరాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ బీటీ రోడ్ చేసుకున్నాం దాన్ని. ఆ తర్వాత ఇంకా కొంత ట్రాఫిక్ పెరిగిన తర్వాత R&B తీసుకొని R&B రోడ్ చేసింది దాని స్టాండర్డ్లో. ఇంకా అవసరాన్ని బట్టి దాన్ని డబుల్ రోడ్లు చేసుకున్నాం. పెరిగిన జనాభాను దృష్టిలో పెట్టుకొని కేసీఆర్ గారు గ్రామాల నుంచి వెళ్ళి తప్పకుండా మండలానికి ఒక రోడ్డు, మండల కేంద్రాల నుంచి ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి జిల్లా కేంద్రానికి డబల్ రోడ్డు, జిల్లా కేంద్రం నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాద్కు తప్పకుండా 4 లేన్ల రోడ్లు ఉండాలి అని చెప్పి చేసిండ్రు. ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడైనా ఇదే చేస్తారు. ఇవాళ మనం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను కూడా అన్నింటినీ చూసి వస్తూ ఉన్నాం. మనం అమెరికాకు పోండి, ఇంగ్లాండ్కు పోండి, కెనడాకు పోండి, ఆస్ట్రేలియాకు పోండి, చైనాకు పోండి, రష్యాకు పోండి, అవసరాలు పెరిగిన కొద్దీ రోడ్డును వెడల్పు చేసుకుంటూ పోతారు. ఇప్పుడు మనం ఈ విజయవాడ హైవే చూస్తున్నాం. ఈ మధ్యన వెడల్పు కార్యక్రమం మొదలుపెట్టిండ్రు. అంతేందుకు ఇవాళ ఎయిర్పోర్ట్లోకి పోయే రోడ్డు చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇవాళ వెడల్పు చేసే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నారు. ఏ రోడ్డు చూసినా మీరు కరీంనగర్ పోయే రోడ్డు చూడండి, నాగపూర్ పోయే రోడ్డు చూడండి, ముంబై పోయే రోడ్డు చూడండి, బెంగళూరు పోయే రోడ్డు చూడండి. పెరుగుతున్న ప్రజల అవసరాలను బట్టి రోడ్లను నెమ్మదిగా వెడల్పు చేసుకుంటూ పోతారు. కానీ ఇండ్లే లేని చోట రోడ్లు వేయటం అనే మూర్ఖపు పని ఏ ప్రజాప్రభుత్వం చేయదు, ప్రజల డబ్బులతోనే అసలే చేయదు. కానీ ఇవాళ లేని ఫ్యూచర్ సిటీకి రోడ్ వేస్తా, నేను మెట్రో కూడా తీసుకుపోతా అని చెప్పి ఈ ముఖ్యమంత్రి మాట. तेलंगाना के साबिक TGSRTC MD और IPS अफसर विजय साजानर ने अपनी आखिरी दिन की ड्यूटी के दौरान आम मुसाफिर की तरह बस में सफ़र किया। उन्होंने 113I/M बस में लाखड्डी का पिल से टेलीफोन भून तक सफ़र किया। टिकट उन्होंने UPI के जरिए अदा किया और कंडक्टर से हासिल किया। सफ़र के दौरान उन्होंने दीगर मुसाफिरों से बातचीत की और दोस्ताना माहौल में वक्त गुजारा। इस इक़दाम से शहरियों में उनकी मकबूलियत बढ़ गई। हाल ही में साजानर को तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया है। उन्होंने अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के बावजूद अवाम के साथ सादा राब्ता कायम रखा। ये सफ़र एक मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शहरियों ने उनकी ये सादगी सराहा। ये वाक़या पुलिस और ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया में मुस्बत तासुर छोड़ गया। तेलंगाना साइबर क्राइम पुलिस ने मुल्क के सबसे बड़े मूवी पायरेसी रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह तेलुगु समेत मुख्तलिफ ज़ुबानों की फिल्मों की गैर कानूनी कापियां बनाकर ऑनलाइन फैला रहा था। इब्तिदाई तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि इस माफिया ने फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से मुतअद्दिद इलेक्ट्रॉनिक आलात और सर्वर जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि ये रैकेट बैन अल-अक़वामी सतह पर भी सरगर्म था। फिल्म साजों और प्रोडक्शन हाउसेज ने इस कार्रवाई का खैर मुकद्दम किया है।
हुक्काम ने कहा कि मजीद अफराद के मुलव्वस होने के इम्कानात हैं और तफ्तीश जारी है। पुलिस ने अवाम से अपील की कि वो पायरेटेड मवाद इस्तेमाल न करें। ये कार्रवाई फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी उन्नद ने मीडिया से खिताब करते हुए बड़े मूवी पायरेसी रैकेट को खत्म करने के इक़दामात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुतअद्दिद गिरफ्तारियां की हैं और गैर कानूनी फिल्म की कापियां जब्त की गई हैं। गिरफ्तार अफराद पर फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पुलिस ने बताया कि रैकेट मुख्तलिफ जुबानों की फिल्मों की पायरेसी में मुलव्वस था। कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि वो पायरेटेड मवाद इस्तेमाल न करें। फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों ने पुलिस की कार्रवाई का खैर मकदम किया। तहकीकात के दौरान मजीद मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। कमिश्नर ने बताया कि कानूनी कार्रवाई जारी है और सख्त इक़दामात किए जाएंगे। ये कार्रवाई फिल्म इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कदम है। अवामी शऊर बढ़ाने के लिए आगाही मुहिम्मात भी चलाई जाएंगी। ఇప్పటివరకు మనం ఒకటే అనుకున్నాం, కానీ రెండో ఎంఓ ఏదైతే ఉందో మోడస్ ఆపరెండై అది చాలా ఒక విస్మయం కలిగించే అంశం. అది ఒకటేంటంటే, ఒక రకం ఏంటి, థియేటర్స్లో వెళ్ళి క్యామ్ కార్డర్ ద్వారా రికార్డింగ్ చేసి ఆ మూవీని రికార్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చి దాన్ని అప్లోడ్ చేసి దాన్ని విస్తృతపరచడం. రెండవది హ్యాకింగ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మీడియా హౌసెస్. ఈ అంశం ఇప్పటివరకు ఎవరికి తెలియదు. ఇది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ వారు కనుక్కున్నారు. సో ఫస్ట్ దానికి వస్తే, ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే, ఇదంతా ఎవరు స్పాన్సర్ చేసి ఎవరు నడిపిస్తున్నారు? మెయిన్లీ బెట్టింగ్ అండ్ గేమింగ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారు ఇది స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. అది కూడా ఒక తెలియని విషయం, విస్మయం కలిగించే విషయం. ఆ లింక్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు బయటపడింది. ఇది ఎందుకు చేస్తారు? ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్స్ని బెట్టింగ్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ప్రచారం ఇవ్వడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా ప్లస్ ఈ మూవీస్ ద్వారా వారికి ఆ ప్రచారం చెందుతుంది. ఇంకా చాలా మంది దాంట్లో అందుకే బెట్టింగ్ గేమింగ్కి అలవాటు పడుతున్నారు. फिल्म प्रोड्यूसर दनल राजू ने मूवी पायरेसी रैकेट को गिरफ्तार करने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पायरेसी से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हुकूमत की आमदनी को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। दनल राजू ने वाज़े किया कि अब से फिल्मी दुनिया का कोई फर्द बैटिंग एप्स की तशहीर नहीं करेगा। उनका कहना था कि पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई एक अहम कदम है। फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए सख्त इक़दामात ज़रूरी हैं। बैटिंग एप्स नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जा रही है। दनल राजू ने हुकूमत और पुलिस के ताउन को सराहा। फिल्मी बरादरी ने भी इस बयान की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इंडस्ट्री को साफ सुथरी और महफूज रखने के लिए इज्तिमाई कोशिशें की जाएंगी। अवाम ने भी इस फैसले को मुस्बत करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने असल कांग्रेस कारकुनों को अपील की कि वो इक़्तिदार के लालच में आने वालों को पार्टी से बाहर निकालें। उन्होंने कहा कि 10 सालों तक मेहनत करने वाले हकीकी कारकुनों को नज़रअंदाज करना नाइंसाफ़ी है। जीवन रेड्डी ने तंजिया अंदाज में कहा कि खाने के वक्त अगर कोई दूसरा आ जाए तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने वाले बाज़ MLEs के रवैये पर बिरहमी जाहिर की। उनका कहना था कि अपोजिशन में रहने का मतलब ये नहीं कि तरक्याती काम रुक जाएं। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में जब CR वजीर आला थे तो करीम नगर जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने बोनर पलचन्ना बिल्ला पिल के लिए दरखास्त दी थी। इस पर CR ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सिर्फ 5 मिनट में 70 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। जीवन रेड्डी ने कहा कि असल कारकुनों को ही कांग्रेस की ताकत समझना चाहिए। उनके बयान पर पार्टी हलकों में बड़ी बहस शुरू हो गई है। लद्दाख के मरूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर खदशात पैदा हो गए हैं। किडा के सजुअद करगिली ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अक़दाम लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अजनबियत का एहसास बढ़ा सकता है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले। सजुअद करगिली ने लद्दाख के मकामी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया।
गिरफ्तारी के बाद इलाके में तशवीश की फिजा कायम है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लद्दाख के नौजवानों में भी बेचैनी पाई जा रही है। कारकुनान और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज के इम्कानात जाहिर किए हैं। ये वाकया मकामी सियासी और समाजी हलकों में बहस का मौजू बन गया है। सजुआद करगिली ने अपील की कि इंसानी हुकूक और कानूनी ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि लद्दाख के लोगों ने लेह के अंदर माइनस टेम्परेचर में प्रोटेस्ट किया, जम्मू के अंदर आकर के भी प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में आकर के भी प्रोटेस्ट किया और कई बार बातचीत भी की। हमारा जो आंदोलन है वो बहुत पीसफुल आंदोलन रहा है और हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए की सपोर्ट में जो लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, जो इनिशियली लेह एपेक्स बॉडी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अभी हाल ही में वो लेह एपेक्स बॉडी का भी हिस्सा बने थे और हम ये चाह रहे थे कि वो भी बातचीत में हमारे साथ जाएं और बातचीत का हिस्सा बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लद्दाख के एक तो मूवमेंट को जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की और जिस तरीके से उनको और बहुत सारे और साथियों को, तकरीबन 40 के करीब लोगों को डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है और सोनम वांगचुक के ऊपर जो है वो ड्रैकोनियन एनएसए लगा के उन्हें जोधपुर जेल में बंद किया गया है। एक ऐसे समय में जब हमारा देश जो है वो मुख्तलिफ चैलेंजेस से जूझ रहा है, ऐसे में लद्दाख जैसे सेंसिटिव जो रीजन के साथ। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का काम खत्म हो चुका है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अब के टीआर को कुत्ता भी वोट नहीं देगा। अरविंद ने कहा कि कलवाकुंतला खानदान पर अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में असल मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होगा। उनके मुताबिक इक़्तिदार में वापसी या तो बीजेपी करेगी या फिर कांग्रेस। उन्होंने मजीद कहा कि 2028 तक कौन जेल में होगा ये कहना मुश्किल है। अरविंद ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या वो भूल गए कि उन्हें आधी रात को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि रेवंत के पास अवामी हौसला नहीं है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की पूरी जिम्मेदारी किशन रेड्डी पर है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने पार्टी हिकमत अमली पर एतमाद जाहिर किया। नरमेल जिला के दस्तूर आबाद मंडल के परियकुपले गांव में मकामी इंतखाबात में एससी रिजर्वेशन पर उलझन पैदा हो गई है। गांव में सिर्फ 500 वोटर्स हैं, जिनमें सिर्फ 4 एसटी वोटर्स मौजूद हैं और बाकी बीसी वोटर्स हैं। इसके बावजूद सरपंच की नशिस्त एससी जुमरे के लिए मखसूस की गई है। गांव के लोग इस फैसले पर हैरान और तशवीश में हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब असल एससी वोटर मौजूद ही नहीं तो रिजर्वेशन कैसे दी गई। मकामी अफराद ने हुकूमत और इंतखाबी अफसरान से वजाहत का मुतालबा किया है। गांव में इस सूरत-ए-हाल ने सियासी और समाजी बहस को जन्म दिया है। लोगों ने कहा कि इस तरह के फैसले इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत पर सवाल उठाते हैं। मकामी रहनुमा भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ये मसला रियासती सतह पर भी तवज्जो का मरकज बन गया है। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर 9 मिनट में एक शख्स रेबीज से हलाक हो रहा है। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि इन अमवात में से 1/3 सिर्फ भारत में हो रही है। भारत में 2023 के दौरान 284 अफराद रेबीज के बाइस जान से हाथ धो बैठे। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम ने पार्लियामेंट को रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मुल्क में लाखों आवारा कुत्तों की मौजूदगी इस संगीन सूरत-ए-हाल की बड़ी वजह है। WHO ने फौरी तौर पर वैक्सीनेशन और आगाही मुहिम्मात शुरू करने की हिदायत दी है। कई ममालिक में 70% वैक्सीनेशन के जरिए रेबीज पर काबू पाया जा चुका है। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया कि भारत भी इसी अमल को मरहलावार नाफिज करेगा। हुक्काम का कहना है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ही इस मोहलिक बीमारी को ख़त्म करने का वाहिद जरिया है। माहिरीन सेहत ने अवाम से अपील की है कि काटे जाने के फ़ौरन बाद वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ये अक़दाम रेबीज अमवात में नुमायां कमी लाने के लिए ज़रूरी करार दिया जा रहा है। अशोकनगर में बेरोजगार अफराद ने भुट्टो कमुआ के गीत और रक़्स के जरिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी जॉब नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। एहतजाज में नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का मसला शदीद होता जा रहा है।
मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि सरकारी नौकरियों में शफाफियत नहीं है। उन्होंने हुकूमत से वदाशुदा भर्तियों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का कहा। मकामी पुलिस ने एहतजाज की निगरानी की और अमन कायम रखा। एहतजाज के दौरान सड़कें भी कुछ देर के लिए बंद रहीं। अवाम ने मुजाहिरीन की हिमायत का इजहार किया। ये एहतजाज बेरोजगारों के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक मुअस्सिर इक़दाम करार दिया जा रहा है। దుర్గా సరిగో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇగో గదే మోరి గదే మోరి జా మోరిలో చూడండి రైట్ ఇదేం కదా हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हलके के बोरा बांडा सरकारी अस्पताल में शर्मनाक वाकया पेश आया। एक मां ने अपने बीमार बच्चे के लिए शरबत, सिरप मांगा तो अस्पताल अमले ने पैसे तलब किए। मां ने बिरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलते। वाकया पर मरीजों के रिश्तेदार भी नाराज हो गए। अमले ने आधार कार्ड न होने का बहाना बनाकर दवा देने से इनकार किया। यहां तक कि बिजली का बिल दुखाने की भी शर्त रखी गई। मुतासिरा खातून ने कहा कि गरीबों के साथ ऐसा सुलूक जुल्म है। अस्पताल अमले के रवैये को गैर इंसानी करार दिया जा रहा है। वाकया ने मकामी अवाम में गुस्से की लहर दौड़ा दी। शहरियों ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इंतजामिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तुम ज्यादा बात न करो। बच्ची की बुखार की टानिक नहीं दे सकते जी। इधर आओ जी। पैसा देना का देना को पैसे कहीं को देता है। पैसे चपलों से मारते तुम्हारे को। पैसे मांगे तो गलीजा काके की थू तुम्हारी जिंदगी पे तुम्हारे नौकरान चले दो तुम लोगों के नौकरियां। कैंप कहीं को कैंप रहता रोज कैंप रहता और रोज कैंप रहता यहाँ पर। चप्पल बाहर छोड़ के बात कर। मैंने चप्पल बाहर ही छोड़ती मैं खाली बच्ची को बताने आई तो बोले मैं श्री राम नगर गए तो बोल रहे श्री राम नगर को जाओ बोल रहे। श्री राम नगर को गए तो मैं बोले तुम्हारी बस्ती के दवाखाने को जाओ बोले। तुम्हारी बस्ती किधर है? ये हाजी मस्तान के पास है। मेरा आधार कार्ड बोरा बंडे का 6 मैं बता रही हूँ आपको। हाँ हमारे एरिया को नहीं आता। ये बाजू का बोल रही मैं हाजी मस्तान बोल रहे ना। फिर आप मेरे साथ चलो मेरे घर को मेरा घर बताती हूँ। मेरी दवाखाना कहीं के लिए खोले आप? क्या समझते तुम लोगों क्या पैसे देना तुम लोगों को बताने के वास्ते? तुम ज्यादा बात नहीं करना। तुम बाबा फसुद्दीन बाबा को बुलाती मैं बीच में सुने ना। तुम कैसी बात कर रहे मेरे से? लेके रहे तुम। मैं खाली बताने बच्ची के टाने का ये बच्ची के बुखार के टाने का नहीं है तुम्हारे घर। ये बच्ची के टाने का है नहीं है पूछी मैं। एक मिनट उन्होंने क्या बोले? तेलंगाना में बीआरएस कारकुन और कबायली नौजवान बानवट्टू रवि ने खुदकुशी की कोशिश की। इसने मुबैना तौर पर वजीर पवंगोलेती श्रीनिवास रेड्डी के रिश्तेदारों और पुलिस पर हरासानी का इल्जाम लगाया। रवि ने कहा कि तुम्बोरी दियाकर रेड्डी, रामसेम नरेश रेड्डी, एसीपी तिरुपति रेड्डी और एसआई कोचिपुडी जगदेश इसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। हरासानी से तंग आकर इसने कीले मार दवा पी ली। वाकया के बाद रवि को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत नाजुक है। मकामी अफराद ने इस वाकये पर शदीद गम और गुस्सा जाहिर किया। बीआरएस कारकुनों ने इंसाफ का मुतालबा किया है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ये वाकया सियासी सतह पर भी हलचल मचा रहा है। నాకు ఇప్పుడు ఇంత కష్టమే వచ్చింది ఏం ఇబ్బంది అయింది పొంగిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వాళ్ళ బంధువులు తుమ్మూరు దయాకర్ రెడ్డి
तेलंगाना में मकामी इदारों के इंतखाबात के लिए रिजर्वेशन के मामले पर दिलचस्प और उलझन पैदा करने वाली सूरत-ए-हाल सामने आई है। खम जिला के चंदरकानी मंडल के राघवापुरम गांव में सिर्फ एक ही एससी खानदान आबाद है, जिसमें मां और बेटा ही शामिल है। इसके बावजूद गांव में 3 ओहदे एससी रिजर्वेशन के तहत मुख्तस किए गए हैं। मकामी इदारा इंतखाबात में सरपंच का ओहदा एससी खातून के लिए, दूसरे वार्ड का रुकनियत एससी खातून के लिए और चौथे वार्ड का रुकनियत एससी जनरल के लिए रिजर्व कर दी गई है। इस सूरत-ए-हाल में सरपंच के तौर पर मां कंपली कोटमा और चौथे वार्ड मेंबर के तौर पर बेटे डेविड के बिला मुकाबला मुंतखब होने के इम्कानात रोशन है। गांव में इस मामले पर बहस जारी है। मकामी अवाम ने कहा कि रिजर्वेशन का ये तरीक़ाकार गैर मुतवाज़िन है। माहिरीन का मानना है कि ये इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल खड़े कर रहा है। ताहम गांव में फ़िलहाल मां और बेटे के इलेक्शन में जीतने के इम्कानात तकरीबन यकीनी है। ये मामला रियासती सतह पर दिलचस्पी का मौजू बन गया है। आंध्र प्रदेश के अंकुपली जिला के राजापेट में माहीगीरों ने बेलुक ड्रग पार्क के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने होम मिनिस्टर अनीता के काफिले को रोक दिया। माहीगीरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत बेलुक ड्रग पार्क मंसूबे पर वाज़े यकीन दहानी दे। उनका कहना था कि ये मंसूबा माहीगीरी और मकामी माहौलियात के लिए खतरनाक है। होम मिनिस्टर अनीता ने मसले पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। ताहम माहीगीरों ने कमेटी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान मौके पर कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने सूरत-ए-हाल को काबू में करने की कोशिश की। मकामी अवाम ने कहा कि वो अपने रोजगार पर समझौता नहीं करेंगे। ये मामला सियासी और समाजी सतह पर जोर पकड़ रहा है। कोझिकोड में 30 साला फैजल ने एक मुनफरिद एहतजाज किया। उन्होंने बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाकर हुक्काम की तवज्जो मबजूल कराई। मकामी लोग 3 साल से सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फैजल का यह अक़दाम अवामी मसाइल की निशानदेही के लिए था। सड़क की खराब हालत ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी है। मकामी अफराद ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और मुतालिबात दोहराए। शहरियों ने कहा कि सालों से उनकी शिकायत पर अमल नहीं किया गया। हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। ये वाक़या सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। अवाम ने इस एहतजाज को जिदोजहद बराए अवामी हुकूक करार दिया। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने एक अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी और पीसीबी चेयरमैन नखा के हाथों से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया। इस सूरत-ए-हाल में नखा ट्रॉफी और मेडल्स वापस ले गए। बाद अज़ां भारतीय टीम के खिलाड़ी पोडियम पर पहुंचे और ट्रॉफी के बगैर ही जश्न मनाया। इस वाक़ये ने शायकीन क्रिकेट को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के इस रवैये पर बहस छिड़ गई है। कई मद्दाहों ने कहा कि ये जश्न भारतीय टीम के इत्तेहाद और जज्बे की अलामत है। कुछ ने इसे गैर मामूली मगर यादगार लम्हा करार दिया। इस जश्न में खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। ये मंजर क्रिकेट तारीख के दिलचस्प वाक़यात में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के जिला कोनसीमा के अंतर्वेदी इलाके में बंगाल की खाड़ी तकरीबन 500 मीटर पीछे हट गई है। मकामी अफराद के मुताबिक साहिल पर घुटने तक ऊंडरों मिट्टी जमा हो गई है, जिससे साहिली पट्टी का मंजर मुकम्मल तौर पर बदल गया है। गांव वालों में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि आम तौर पर समंदर का इस तरह पीछे जाना सुनामी की अलामत समझा जाता है। माजी में भी इस इलाके में रेत के टीले बनने के बाइस समंदर चंद मीटर पीछे गया था। ताहम इस बार तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे हटने से खौफ व हरास फैल गया है। करीबी देहात के लोग अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं। माहीगीर बरादरी ने भी समंदर के गैर मामूली रवैये पर तशवीश जाहिर की है। हुक्काम ने कहा कि फ़िलहाल खतरे की कोई इत्तला नहीं है।
साइंसी माहिरीन ने सूरत-हाल का जायजा लेना शुरू कर दिया है। पुलिस और मकामी इंतजामिया ने आवाम से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है। దేవస్థానం ఇది బంగాళాఖాతం ఎప్పుడు కూడా నిత్యము భక్తులతో